پاکستان اور سعودی عرب کے تاریخی اسٹریٹجک دفاعی معاہدے پر دستخط۔ پاکستان یا سعودی عرب کے خلاف جارحیت، دونوں ملکوں پر حملہ تصور ہوگی۔ کسی بھی خطرے سے دونوں ملک مشترکہ نمٹیں گے۔ ایک ملک کی عسکری طاقت دوسرے ملک کے دفاع کے لیے بھی دستیاب ہوگی۔ پاکستان حرمین شریفین کے تحفظ میں سعودی عرب کا پارٹنر بن گیا۔ سعودی وزیر دفاع خالد بن سلمان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان جارح کے مقابل ہمیشہ سے ابد تک ایک صف میں کھڑے ہیں۔ معاہدے پر سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور وزیر اعظم شہباز شریف نے دستخط کیے۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے معاہدے کی کامیابی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم، سعودی ولی عہد، فیلڈ مارشل اور سعودی وزیر دفاع کی تصویر جاری۔ اس سے پہلے سعودی عرب کی فضاؤں سے قصر یمامہ تک پہنچنے تک وزیر اعظم کا شاندار استقبال کیا گیا۔ ایئرپورٹ سے قصر یمامہ تک سڑکوں پر سبز ہلالی پرچموں کی بہار رہی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شاندار استقبال پر سعودی ولی عہد سے اظہار تشکر۔ کہا، سعودی ایئر فورس کے طیاروں کا غیر معمولی ایئر اسکارٹ پاکستان سعودی تعلقات کی گہرائی اور باہمی احترام کی عکاس ہے۔ پاکستان سعودی سرمایہ کاری اور تجارت مزید مستحکم کرنے کا خواہاں ہے۔ ولی عہد محمد بن سلمان سے نتیجہ خیز ملاقات ہوئی، جس میں خطے کے مسائل اور دو طرفہ تعاون پر بات چیت ہوئی۔ ولی عہد کے ویژنری قیادت اور مسلم دنیا کے لیے خدمات کو سراہتے ہیں۔ وزیر اعظم سعودی عرب کا دورہ مکمل کر کے ریاض سے لندن روانہ ہو گئے۔ پاک سعودی عرب اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ تمام فوجی وسائل کا احاطہ کرتا ہے۔ اعلیٰ سعودی عہدیدار کی برطانوی خبر ایجنسی سے گفتگو۔ کہا، جامع دفاعی معاہدہ کسی مخصوص واقعے کا رد عمل نہیں، بلکہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان طویل مدتی تعاون کا عکاس ہے۔ جلال پور پیر والا میں سیلابی پانی کی کمی کے لیے M5 موٹر وے پر شگاف ڈالنے کی تجویز۔ محکمہ انہار پر موٹر وے پر شگاف ڈالنے کو انتہائی ضروری قرار دے دیا۔ چیئرمین NHA اور متعلقہ حکام پر مشتمل کمیٹی آج جائزہ لے گی۔ محکمہ انہار کے مطابق 8 روز بعد بھی جلال پور پیر والا کے اطراف پانی میں معمولی کمی ہوئی۔ دریائے ستلج کا 40% پانی اچ شریف کے شگاف سے ابھی تک بھی جلال پور اور لودھنا کی جانب جا رہا ہے۔ پانی کو دریائے چناب میں ڈالنے کے لیے موٹر وے پر شگاف ڈالنا ضروری ہے۔ سیلاب سے متاثرہ ملتان M5 موٹر وے جلال پور پیر والا سے جانگڑہ انٹرچینج تک چھٹے روز بھی بند ہے۔ متبادل راستوں پر ٹریفک بھیجا جا رہا ہے۔ سکھر بیراج پر پانی کی سطح میں معمولی کمی، اونچے درجے کا سیلاب برقرار۔ ریلا پیر منگل تک کوٹری بیراج پہنچے گا۔ دادو مورو پل پر پانی کی سطح میں اضافہ۔ میہڑ اور دادو تحصیل کے کچے کے علاقے متاثر۔ نو گوٹ میں زمیندارہ بند میں شگاف، مزید 4 دیہات زیر آب۔ کپاس، تل اور دیگر فصلیں متاثر۔ ضلع میں سیلاب متاثرہ دیہاتوں کی تعداد 46 ہو گئی۔ دیہاتوں کا میہڑ اور دادو سے زمینی رابطہ منقطع۔ میہڑ سے سیلابی ریلا لاڑکانہ سیون بچاؤ بند سے آج ٹکرائے گا۔ متاثرہ علاقوں سے لوگوں کی نقل مکانی۔ گڈو بیراج کے اور توڑی بند پر پانی کا دباؤ برقرار، چند روز میں کمی کا امکان۔ نشیر و فیروز میں تگر روڈ ریلے سے متاثر 20 فٹ حصہ سیلاب میں بہہ گیا۔ اہل علاقہ کی ٹریکٹر ٹرالیوں کے ذریعے مویشیوں اور سامان کی محفوظ مقامات پر منتقلی، کشتیوں کا بھی استعمال۔ سیلاب سے لودھنا اور راجن پور میں تباہی، سیلاب متاثرین غمگین۔ لودھنا میں نوجوان نے اپنا دکھ شاعری میں بیان کیا۔ کہا، صرف دریا ہی نہیں، آنکھیں بھی بہہ رہی ہیں۔ راجن پور اور کمالیہ میں متاثرین اپنے گھر کی تباہی پر اشک بار ہو گئے۔ ایک شخص نے روتے ہوئے کہا، سب کچھ ختم ہو گیا، نہیں جانتے اب کیا کریں گے۔ جلال پور پیر والا کے کنڈائی بند پر قائم فلڈ ریلیف ٹینٹ سٹی میں سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان کی فراہمی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر سیلاب متاثرین کو پینے کا صاف پانی، خشک راشن بھی مہیا کیا گیا۔ مویشیوں کے لیے چارے کی بھی فراہمی۔ کنڈائی بند کی تعمیر و مرمت ریکارڈ وقت میں مکمل کی گئی۔ چترال کے نواحی گاؤں شالی گول کے مقام پر موسلادھار بارش سے ندی نالوں میں شدید طغیانی۔ برساتی ریلے میں مسافر گاڑی پھنس گئی، کوئی جانی نقصان نہ ہوا۔
दरियाई चित्राल में भी तुगयानी, नशेबी इलाके पानी की जद में आ गए। इस्लामाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार, मानसहरा और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बारिश, वादी कागान, वादी कोंच और वादी सरन में भी बारिश। मुजफ्फराबाद और वादी नीलम में अच मकाम समेत बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि मुल्की मईशत, तरक्की और ट्रैफिक सहूलत के एतबार से घोटकी कनकोट पुल दरियाए सिंध पर तवील तरीन पुल होगा। घोटकी कनकोट पुल मंसूबे पर इजलास में मुराद अली शाह ने कहा कि पुल की तामीर से सिंध पंजाब और सिंध बलूचिस्तान के दरमियान आमदरफ्त आसान हो जाएगी। दरियाए सिंध पर घोटकी कनकोट पुल ज़ेर तामीर है। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला खुजदार में ऑपरेशन, फितनतुल हिंदुस्तान के 4 भारतीय दहशतगर्द हलाक, असलहा, गुलब बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक 17 सितंबर को किए गए ऑपरेशन में दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। दहशतगर्द इलाके में मुतादिद कार्रवाइयों में सरगर्म थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTA को ओहदे से हटाने का जस्टिस बाबर सत्तार का फैसला मुअत्तल कर दिया। मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान ओहदे पर बहाल। जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास पर मुश्तमिल 2 रुकनी डिवीजन बेंच ने समाअत की। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में अरशद नदीम कुछ देर बाद एक्शन में होंगे। अरशद नदीम ने तीसरी बारी में 85.28 मीटर की थ्रो की। भारत के नीरज चोपड़ा समेत 12 खिलाड़ी ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। अरशद नदीम के आबाई गांव मियां चन्नू में फाइनल मैच देखने की तैयारियां। वालदा का कहना है कि उनका बेटा एक बार फिर मुल्क का नाम रोशन करेगा। भाई ये पूरी कौम से दुआओं की अपील। अलीमा खान की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात। अलीमा खान का कहना है कि चीफ जस्टिस से बानी PTR बुशरा बीबी की सजा मौतली का केस लगाने की इस्तदा की है। चीफ जस्टिस ने केस 25 सितंबर को मुकर्रर करने की यकीन दहानी करवाई है। क्लाउड बर्स्ट की तरह PTI रहनुमाओं को सजाएं हुई। हम इन फैसलों से बहुत मुतासिर हुए, अब बस हो गया। एक दूसरे को टारगेट करना बंद करें। पेशावर हाईकोर्ट में रहनुमा PTI उमर अयूब, शिबली फराज और अब्दुल लतीफ की नाअहली से मुताल्लिक दरख्वास्त की समाअत में बैरिस्टर गौहर के दलाइल। कहा शिबली फराज और उमर अयूब केस में इलेक्शन कमीशन को कोई रेफरेंस नहीं भेजा गया था। इलेक्शन कमीशन ने इन रहनुमाओं को नाअहल करने की कोई वजह नहीं बताई। इलेक्शन कमीशन के पास नाअहली का कोई इख्तियार नहीं। चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की नोटिफिकेशन को कल आदम करार दिया जाए। गजा पर इजरायली हमले जारी। अल नसैरात और अल बरीज कैंप पर ताज़ा फ़ज़ाई हमले। 6 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों को निशाना बनाया। शेख रिजवान में पूरा रिहायशी ब्लॉक तबाह कर दिया। 24 घंटों में मज़ीद 83 फ़लस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से 4 और फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। गजा सिटी में इसराइली फ़ौज का ज़मीनी ऑपरेशन जारी। गजा के जनूबी इलाके अल-मवासी में मौजूद बेघर फ़लस्तीनियों का कहना है कि गजा में इसराइली बमबारी से कोई जगह महफूज नहीं। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो ने कहा है कि गजा के फ़लस्तीनी एक बार फिर अपनी सरजमीन से बेदखल किए जा रहे हैं। मुसलसल खौफ और नाकाबिल कबूल हालात में जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। पोप लियो की एक बार फिर जंग बंदी अलगमालियों की रिहाई के लिए बाहमी सिफारती हल की अपील। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि अफसोस मुस्लिम लीग नून की पंजाब हुकूमत की नातजर्बेकारी और बुरी हिकमत अमली के बायस पंजाब के लोग मुश्किलात में हैं और नून लीग इससे आवाम की तवज्जो हटाना चाहती है। बयान पर रद्द-ए-अमल में वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने कहा कि नून लीग ने कभी सूबाइयत कार्ड, नहरों के कार्ड और डैम कार्ड नहीं खेले। जिस टीम को शर्जील मेमन गैर तजर्बेकार कह रहे हैं उसने पंजाब में 80 मनसूबों के साथ इनकलाब बर्पा कर दिया। आपने 17 साल में जो सिंध का हश्र किया उसका रोना वक्तन फवक्तन रोते रहते हैं। सिंध के पिछले सैलाब में बैरूनी इमदाद के बावजूद आज भी तबाही ही तबाही है। बिलावल ने सैलाब से निपटने में मरीम नवाज की तारीफ की और आप उनको झुठला रहे हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज मुफ्ती की ज़ेर सदारत अफ़गान महाजरीन के इनखला के दौरान ख़वातीन, बुजुर्गों और बच्चों का खुसूसी ख्याल रखने की हिदायत। कहा
किसी भी मरहले पर तहकीर आमीज रवैया हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगा। इनखला के दौरान मुकम्मल ताउन और मावनत फराहम की जाए। वज़ीर आला का किला अब्दुल्ला से जराइम पेशा नासिर का खात्मा हर सूरत यकीनी बनाने का हुक्म। कहा, अमन और अमान की बहाली के लिए सूबाई हुकूमत तमाम वसाइल बरोए कार लाएगी। न कीमोथेरेपी न सर्जरी, पाकिस्तान में जदीद कोआगुलेशन कैंसर ट्रीटमेंट का आगाज। वज़ीर आला मरीम नवाज आज पंजाब के पहले कोआगुलेशन सेंटर का इफ्तिताह करेंगी। मेयो अस्पताल में कायम सेंटर में डॉक्टरों और अमले की तरबियत मुकम्मल हो चुकी है। गुजरांवाला में मोड़ एमनाबाद में 4 बच्चों की मौत जहरीले खाने से हुई। पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक मरने वाले 3 बच्चों में फॉस्फिन पॉइजन के शवाहिद मौजूद हैं। CPO गुजरांवाला के मुताबिक खाने में कोई जहरीली चीज़ गिरी है या जहर मिलाया गया, तहकीकात जारी हैं। 11 साला नूर फातिमा, 8 साला हैदर और 5 साला जन्नत अस्पताल में दम तोड़ गए थे। गुज़श्ता रात 13 साला ऐमन भी दम तोड़ गई। वाक़या 29 जून को पेश आया था। कराची में शारा कायदीन पर जमात इस्लामी के तहत चिल्ड्रन गज़ा मार्च, तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद शरीक। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का चिल्ड्रन गज़ा मार्च से खिताब। कहा, हम गज़ा के शुहदा को कभी नहीं भूलेंगे। गज़ा के बच्चे तन्हा नहीं, पूरी उम्मा के बच्चे उनके साथ खड़े हैं। कराची में MR कयानी चौक आर्ट्स काउंसिल के करीब JUIFA का जलसा आज होगा। पार्टी रहनुमाओं के मुताबिक सिंध अमन मार्च का काफिला ठट्ठा से बरास्ता गखर फाटक कराची में दाखिल होगा। शारे फैसल पर सरबराह JUIFA मौलाना फजल रहमान मार्च की क़यादत संभालेंगे। कराची में पिंडाल की तैयारियां, शाहीन कॉम्प्लेक्स से फवारा चौक तक सड़क बंद रहेगी। पाकिस्तान उलमा काउंसिल का पाकिस्तान सऊदी स्ट्रेटेजिक माहदे पर कल मुल्क भर में यौम तशक्कुर और यौम दुआ मनाने का ऐलान। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन ताहिर अशरफी का कहना है, अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें हरमैन शरीफैन की दिफा की सआदत बख्शी। पाकिस्तानी क़यादत, फील्ड मार्शल और सऊदी वली अहद तारीफ के मुस्तहिक हैं। नायब सदर पीपल्स पार्टी और सेनेटर शेरी रहमान ने सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान तारीखी मुआहदे को अहम संगे मील करार दे दिया। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, खतरात पूरी दुनिया में लाहक हैं। इसराइल और भारत ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने जंगल का कानून बना रखा है। साबिक सफीर मलिहा लोधी ने कहा, मुआहदे से पाकिस्तान एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर सामने आया है। साबिक वफाकी वज़ीर मुशाहिद हुसैन ने कहा, भारत को इस मुआहदे के बारे में मालूम नहीं था, उनके लिए सरप्राइज था। भारत इसराइल की जारियत को सपोर्ट कर रहा है, इस मुआहदे से इसराइल जरूर घबराएगा। पाक सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक मुआहदा। सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद में बुलंदबाला इमारतें सऊदी अरब और पाकिस्तानी परचम के रंगों से मुनव्वर। इमारतों पर पाकिस्तान का सब्ज हिलाली सफ़ेद सितारे वाला परचम के साथ सऊदी अरब का सब्ज परचम जगमग कर रहा है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जस्टिस समन रिफत को तहफ़्फ़ुज़ हिरासती कमेटी से अलग करने पर इज़हार तशवीश। HRCP के मुताबिक जस्टिस समन रिफत ने वकील ईमान मज़ारी की दायर हिरासानी की शिकायत पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी थी। ऐसी इंक्वायरी कमेटी में एक खातून रुकन का शामिल होना लाजमी है। जस्टिस समन रिफत अदलिया में सिनफी अदम तवाज़ुन को नुमाया करती हैं। HRCP का ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा के खिलाफ मुकदमे पर भी तशवीश का इज़हार। कहा, ये इल्ज़ामात आज़ादी इज़हार राय और इंसदादी दहशतगर्दी क़वानीन के गलत इस्तेमाल पर सवालात उठाते हैं। रियासत पैका एक्ट को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके इख्तिलाफ़ राय को दबाने से बाज रहे।